अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए अपना रवैया नरम किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमने भारत को खो दिया है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बताते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को विशेष बताया। I don't think we have. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia. And I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस ताजा रुख का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। मोदी ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे यूक्रेन के साथ बातचीत को तैयार हैं। पुतिन ने जेलेंस्की को दूसरी बार मॉस्को बुलाया और कहा कि जेलेंस्की को मेरी गारंटी है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। What we see in reality is that judicial system in Ukraine is virtually no longer existent. It's been exterminated, and this is just one more illustration of the so-called democratic nature of the Ukrainian regime. So this is an everlasting process that leads us into nowhere. But nonetheless, we have confirmed that we are ready to have meetings on the highest level. But look, Ukraine wants to have this meeting. They are suggesting we have this meeting. My answer was, I'm ready. Please do come. I guarantee you we will take care of security matters and we create good working environment. You have my word, 100% guarantee. But what we see is that Ukrainian side is saying, we want to have a meeting with you, but you go to a particular location for this meeting. Well, I guess they're asking for too much. So I will repeat, if somebody wants to meet us, we are ready. And the best time to have this meeting is the capital of Russia, the hero city of Moscow. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के साथ शांति वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को बुलाया था, लेकिन जेलेंस्की ने पुतिन की नीयत पर शक जताया। Honored American partners told us that Putin invited me to Moscow. You know what I think? When you don't want to have a meeting, so what do you have to do? You have to invite me to Moscow. That's why I think that Russia started to talk about meeting. That's not a bad thing. But right now we do not see any wish on their part to stop this war, to finish this war. And the meeting... इस बीच ईस्टर्न आइकोनिक फोरम के एक कार्यक्रम में पुतिन ने कहा कि रूस के पास अमेरिकी कंपनियों के साथ अलास्का में ज्वाइंट परियोजनाओं के लिए अच्छे प्रस्ताव हैं। अलास्का के पास संसाधन है और रूस के पास जरूरी तकनीक। रूसी राष्ट्रपति का यह बयान उस समय आया है जब ट्रंप ने यह कहा कि उन्होंने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। Our engagement or started in you, but we're talking Asia Pacific, right? And we have some very good proposals on how to work with U.S. companies in Alaska. And there are resources available there. And we've got technology of producing and liquefying natural gas. And those technologies are much more efficient compared to what our American partners have. And they are aware of that. In fact, at the level of businesses, they are ready to cooperate. It's not up to us. I mean, we are ready, provided some political decisions are made. And that's the area where we're going to proceed. We can cooperate in the Arctic, too. And by the way, with our Chinese friends, we discussed the possibility of working in a tripartite arrangements on some of our Arctic fields already now. And in principle, all those possible options are on the table. It just takes some political decisions, but it is possible. And again, this would have been mutually beneficial, be it natural gas or oil.
सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है। घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं और आतंकवादी मार भी गिराए गए हैं। देखिए, यहाँ तक कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हालात हैं और क्या असर पड़ा है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही छोटा वक्त है इस चीज के बारे में बातचीत करने का, क्योंकि ऑफ सिंदूर तो अभी कुछ दिन पहले खत्म ही हुआ। इसको हमें लंबे समय के दूरबीन से देखना पड़ेगा। आज की तारीख में आप देखें क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म खत्म हुआ है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अभी भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुए हैं और कितने हम लोगों ने टेररिस्ट मार गिराए हैं और कितने लोग वापस भाग गए हैं, तो आप लोगों ने खुद ही मीडिया में इसको कवर किया हुआ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने देर रात तक बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और कहा कि संकट के समय हम सभी को पंजाब की सेवा के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। सभी मित्रों से, बहन भाई भांजे भांजियों, एक निवेदन मुझे करना था। हमारे जितने भी धर्म केंद्र है, सब समाज सेवा और समाज सुधार का माध्यम भी बनना चाहिए। सेवा के बिना धर्म अधूरा है और लोगों की सहायता करना, लोगों को सहयोग करना, मदद करना, मतलब लोगों की सेवा ही असली भगवान की पूजा है। कल मैं पंजाब में था, देर रात तक मैंने वहां दौरा किया, गांव-गांव बाढ़ पीड़ितों के गया। वहां की जनता में मैंने अद्भुत सेवा की भावना देखी। जो डूबे नहीं थे, वो बाकी के लिए जो डूबे थे, जो गांव, उनमें सेवा के लिए दौड़ रहे थे। मैं उनको प्रणाम करता हूं और हम सबका कर्तव्य है कि पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है, ऐसे समय देश को भी पंजाब की सेवा के लिए हाथ उठाना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चुनाव के दौरान पोलिंग के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर हैरानी जताई है। कुरैशी ने कहा कि वोटिंग का आंकड़ा रियल टाइम होता है। मतदान बंद होने के 11 दिन बाद 6% वोट कैसे बढ़ सकते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे तो हैरानी है कि ये डेटा पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, क्योंकि जो ये डेटा है वो उसको प्रोसीजर समझना चाहिए कि ये सब रियल टाइम डेटा है, साथ साथ क्रिएट होता रहता है। और मतलब क्या है कि जब पोलिंग शुरू होती है सुबह 7 बजे 8 बजे, उस वक्त फॉर्म 17A एक होता है, जो जैसे स्कूल में या किसी में हाजिरी का रजिस्टर की तरह होता है। आप अगर सबसे पहले गरिमा वोटर गई तो उसमें लिख दिया जाएगा नंबर 1 वोटर गरिमा, जेंडर फीमेल, और उसके बाद कोई मैं गया तो मेरा नंबर दूसरा, उसके बाद 543 में नंबर गया तो 543। एट एनी मोमेंट अगर कोई अफसर जाके पूछता है अब तक कितनी पोलिंग हो चुकी है, तो लास्ट लाइन को देख लीजिए, तो उस वक्त तक की वो पोलिंग साथ के साथ विद इन ए सेकेंड जनरेट होती जा रही है। इट्स ए लाइव डेटा, ठीक है। ये है 17A। जब पोल खत्म हो जाता है तो उस वक्त इसकी 17A की समरी बनाई जाती है फॉर्म 17C में। अब 17C में सिर्फ 3 कॉलम है। पहले ये कि ये बूथ में कितने टोटल वोट पड़े, इसको फॉर्म में लिखने के लिए 5 सेकंड चाहिए। क्यों चाहिए? आपने कुछ गिनना नहीं, वो जो आपके पास फॉर्म A की लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में जहां 752वां वोटर मेंशन है, तो 752 की गिनती तो आपको वहां सामने लिखे वोट वहां उठा के आप इसमें डाल दीजिए। सिर्फ एक आप थोड़ा सा आपको इस पे काम करना पड़ेगा। ये जो मेल फीमेल वोटर्स थे उनका जेंडर जो है, वो जेंडर इसमें से आपने लिस्ट में कैलकुलेट करके वो उन कॉलम को भर देना है। तो फॉर्म से ही कंप्लीट हो गया और उसको साइन करके उसी वक्त जो पोलिंग एजेंट मौजूद है उनको दे दिया जाता है। तो पोल अगर जब 6 बजे खत्म हुआ तो 6:30-7 बजे तक खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पोल खत्म नहीं होता, क्योंकि लाइनें में लोग लगे होते हैं, 1-2 घंटे और लगे होते हैं, लेकिन पोल उसी दिन खत्म तो होगा। जिस वक्त खत्म होगा, जब खत्म होगा उस वक्त 17C बनेगा। वो 9 बजे रात को बन जाएगा, 10 बजे बन जाएगा, लेकिन उसी दिन बनेगा। अच्छा, अब उस फिजिकल हालत में डेटा तो जनरेट हो गया और व्हाट्सएप पे
इलेक्ट्रॉनिकली ये सब आरओ को और इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया, लेकिन फिजिकली जो साइन है वो कल दोपहर तक पहुंच जाएगा। तो लेटेस्ट अगली दोपहर तक ये डेटा जो है ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए और बल्कि वेबसाइट पे भी डाल देना चाहिए। कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य चुनाव आयोग को प्रदेश में आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराने की सिफारिश की है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्य में ये चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। This is a political decision which we have taken. We believe it in our ballot system. The government has the powers to recommend to the State Election Commission, and the State Election Commission will do it. Even when the amendment was been passed by the BJP government also, they had also written that either EVM or ballot. So we have choose to take up the ballot. What is wrong in it? There is nothing wrong. So we could see a lot of earlier discrepancy, but we know that in the election commission issue we have been raising voice on that EVM machines. When we have an opportunity, we are going to do it. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित मंडी, भुंतर और आसपास के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में पूरी सरकार और प्रशासनिक मशीनरी हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और हम सभी मिलकर इस संकट से उबरेंगे। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के राहत कार्यों की रफ्तार बेहद धीमी है, जिन्हें तेज करने की जरूरत है। उन्होंने हरियाणा सरकार से विशेष गिरदावरी कर 100% फसल मुआवजा और मकानों और दुकानों के नुकसान की भरपाई करने की मांग की। का असर हरियाणा में बहुत पड़ा, बहुत गाँव में भरा है और कई तो मतलब शहर की दुकान मकान भी नष्ट हुए हैं। यमुनानगर कुछ क्षेत्र में तो काफी है और ये हमारे जो भी रोहतक में भी है और भी है, कई जगह है वहाँ पे काफी पानी भरा है और सरकार को जिस चुस्ती और दुरुस्ती से इसका काम करना चाहिए वो नहीं कर रही सरकार। अब हजारों एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है, उसके मुआवजे के लिए इनको स्पेशल गिरदावरी करानी चाहिए तुरंत, और जो मकान या किसी दुकान का नुकसान हुआ है उसको सर्वे करा के उसका पूर्ति करनी चाहिए और सरकार को जल्दी से जल्दी ये कदम उठाना चाहिए जो कि नहीं उठाए जा रहे, जो उठाने चाहिए उतने उस पर नहीं उठाए जा रहे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इंटरनेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नायडू ने कहा कि 2047 तक भारत का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने में कोई संदेह नहीं है। Today, if you see, India has taken bold reforms. 1991 economic reforms. Mid-90s IT revolution, Indians took advantage, first more advantage. God is very kind. India is blessed with demographic dividend. Now slowly we are losing that advantage in South India. Now North India still there is an advantage. With all these factors, we are having a very strong leader also at center. ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your